Hello, hello, Shreyans, can you hear me? Sir, yes, sir. Hello. Hello, can you hear Hello. me? Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. Okay, let's start then. Yes, Okay, sir. Yes, sir. Sure. so tell me what you know about Python. Sir, nothing special. Nothing. So let's start from the beginning itself. Okay, let me share my screen and let me know if you can see my screen or not. I know. Can you see the screen? Sir, yes, I can see. Hello. Yeah. Yes. Okay. So let's. I think you have the software or not. You have downloaded the software or not? No, sir. Not downloaded. Actually, sir, I'm using my brother's laptop, and it does not have that much of space. How much space does it have? Sir, I can't tell you. Actually, sir, he has some files in his. Sir, 1 minute. I'm telling you, sir. 1 minute. I'm telling you. Hello. Yes. Sir, in C drive, the space is around 50. It is written 58 GB free of 194 GB. 58 GB is more than enough. Yes, sir. We are And we are just going to use around 100 MB, nothing more than that. okay, Okay. So I'm just sir, can sharing you. okay, Yeah, I'm just sharing you the download link where you can download the official Python software which is known as Python Ideally. Okay, okay, sir. ठीक है, sir. this is the official Python software known as Python Ideally. And apart Okay, from this, we are going to use one more software which is known as Jupyter. okay, sir. Okay, so when you are going to click on this link, you can see latest Python 3 release, Python 3.9. You can just click on it and you can just download it. No, sir. Yeah, Sir, Python 3 or Python 2? Python 3, not Python 2. Okay, Python 3 release. Yeah, This Python is 3. sir इसमें सर डाउनलोड हाउ टू डू दैट? सर इसमें कोई ऑप्शन शो नहीं Just करता नीचे. just click on it. Yes, sir. Okay, And yes. and after clicking on it, you can go to your down version 60. If your laptop is of 64-bit, you can download a 64-bit. If your laptop is a 32-bit, you can download 32-bit. That installer or embeddable package? You Hello. can download any installer also, embedded package also. ठीक है, Okay, sir. if you want, you can just download the installer. It's easier for you to install. Yes, sir. It is getting installed. Yeah. No, sir. Installed, sir. Okay. Now click on the installer. Yes. Open. Yeah, open it. You're going to see this type of screen, I think. When you're Yes, sir. going to Yes, sir. Yes, sir. okay, just click on install now. So I am sir. Can I share my screen? Yeah, you can.
1 sec, sir. On the top left corner, there should be an option of share screen. Yes. Yes. Allowed. Now just share Yes. your screen. 1 sec, sir. You out. Given the permission, you can share it now. Okay, sir. Are you able Yeah, to I can see? see. Yeah, I can see your screen. Yes. Yes. This Click now? on install now. Yeah. Yes, na? So now it will be keep on installing. Okay. Okay. And And I'm also giving you one more link. Just download that file. okay, sir. Okay. That will take a lot of time, I think. It will take hardly 4 to 5 minutes of time, nothing more than that. Okay, okay. Jada, it is not a heavy file, na? No, it's not a heavy file. It's very light file. I have given you one more link. Just click on that link. Yes, sir. Yeah, your data. Yes. Yeah. So we have some of the issues related to our Python Ideally software. So we are Okay, going sir. to majorly work on this software which is known as Anaconda. It's basically a toolkit. Okay, sir. Okay. So Okay, you sir. can just click on the download button and you can download this toolkit. It will Okay, take sir. some time. In the meanwhile, we'll proceed further. Okay, sir. Okay. So do you understand the word toolkit? Yeah. Yes, sir. Toolkit means uh, basically a tool to execute data science programs, I think. Yes. So just click on this side 64-bit graphical installer. Yes. Okay, sir. So it's a bit heavy file. Okay. Okay, sir. Now this Anaconda toolkit is basically has all the required all the basic softwares which are used by a data scientist. Okay, Okay. sir. If you are working in Python software, then it has a Python compiler. If you are working on R programming language, it has a R compiler. Okay. Okay, sir. It has Okay, sir. visualization libraries also. Okay. And if you are in near future, if you are going to download any other software, then that software is also going to include automatically to this toolkit. Achha, this Anaconda toolkit. Yeah, Anaconda toolkit. Like if in future if you're going to use PyCharm software, then this PyCharm will also be included automatically to this Anaconda toolkit. Okay, sir. Sir, which company has developed this? Anaconda is the name of the company itself. Okay, okay, okay. Okay. We are using its individual open source version, and this company has also its paid version, which are used by companies where they can share their Jupyter or they can share their Jupyter files, and on one single file, multiple persons can work simultaneously. Okay, okay. Okay. So once the file is installed, so you will start. You will teach the basics today or what? I'll teach you basics today. What are we are going to learn and how we are going to process. Okay, sir. Okay. So Yes. I think your Python is almost installed. Yes, sir. No, sir, not yet. I think it will take around 2 to 3 minutes more. No issues. What's the specifications of your system? Yes, sir. What is the specifications? Of which sir? Of my System? laptop. Yeah, laptop. Sir, laptop sir, 4 GB it is RAM. RAM is 4 GB. Windows 10 and sir, actually I i5, don't. Yes, sir, i5. i5, i7. Sir, I'm not sure i5 or i7. Actually, I think sir i5 it is. Actually, it is my brother laptop, so I'm not Okay, sure no about issues. it. No Yes, sir. issues. Sir, actually, I'm going to buy a new laptop for me, but due to lockdown, I'm unable to buy that. No issues. No issues at all. Sir, where do you live near? मतलब आप किधर रहते हो आप? Vaishali. ओके ओके सर घर के पास रहते हो क्या आप?
हाँ, वसीम से मेरे काफी पास रहता है। अच्छा अच्छा, ओके। सर उस समय थोड़ा सा मतलब दैट टाइम मैंने थोड़ा डिले कर दिया था। एक्चुअली क्या था कि कॉलेज का थोड़ा वर्क था, चीज़ें थी, थोड़ा सा मैं उस समय जस्टिफाइड नहीं हो पाया था। आपको पता ही होगा सारा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आपका सर पेपर हो गया? कौन सा सर? आप पेपर देखे थे ना, एमटेक में थे ना शायद आप? हाँ सर, उस समय सर कॉलेज नहीं, वो तो हो गया सर, पेपर तो हो गया कॉलेज का। वैसे सर इस सेमेस्टर में कोई खास पेपर नहीं है मेरा। वो आपका सर उस कौन समय सेमेस्टर चल रहा है? फोर्थ। फोर्थ सेमेस्टर, तो आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना होगा ना, स्कोपस जी सर, जी जर्नल। सर। अच्छा, उसी पेपर के बारे में पूछ रहे हो क्या? हाँ। सर वो मैं सर से करवा रहा हूँ। ओके, सर्च किया, अच्छे करवा लो। जी सर, जी सर। वही सर से मतलब मैंने प्रोजेक्ट का और इसका दिया हुआ है। ओके, टॉपिक डिसाइड हो गया? क्या सर? हाँ टॉपिक? टॉपिक, सर टॉपिक सर सब बता दिया सर मैंने सर को। सोलर पे सारा वर्क है, सारा कुछ क्या है सर का काम भी सर 1 तारीख को सर वर्क जो हाफ से जितना काम किया वो सर 1 तारीख को सबमिट करेंगे मुझे, और तो समझाएंगे। सर तो ये कह रहे हैं ओके। कि 15 to 20 डेज में रिसर्च हम्म। कंप्लीट हो जाएगा, रिसर्च पेपर, क्योंकि ओके, ज़्यादा टफ नहीं है टॉपिक है। ठीक है। क्या टॉपिक चूज बड़ा किया आपने? सर इसमें क्या कहते हैं आपका सोलर, उसमें सोलर सेल है, उसके अंदर सोलर सेल और पीवी पैनल है पूरा। तो हाँ। उसके अंदर सर जैसे आउटपुट जो आएगा ना, जैसे हाँ। उसमें से दो तीन कंपोनेंट्स हैं। हाँ। वो सर को मैंने उस दिन बताया था, सर ने पूरा बना डेवलप किया था पूरा। मुझे भी पूरा थ्योरी क्लियर नहीं है, लेकिन सोलर सेल पे है, पीवी सेल पीवी array पे। ओके। और इनपुट उसमें लेके, और मतलब जैसे उससे हमको क्या कहते हैं जनरेट करना है पावर, रिक्वायर्ड कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जनरेट करना है, ऐसा कुछ बनाना ओके, है पावर सर मॉनिटरिंग का। सिस्टम और जनरेशन सिस्टम बेसिकली आपका। हाँ हाँ सर, नहीं ये तो नहीं कहूंगा सर, ये तो सर टर्म, ये तो सर मैं टर्म यूज नहीं किया, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ। और सर इसके अंदर हम लोग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज करेंगे। मतलब तीन ओके। तरीके के एक एक पी जैसे ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें कि सर कुछ वैल्यूज हैं जिनके जिनके हम्म। जिनके यूज से मैं ये सब करूंगा, ठीक है। तो ओके। जैसे उसमें मतलब तीन तीन चार तरीके से ऑप्टिमाइजेशन में करूंगा, मतलब वैल्यूज का। एक तो सर पीआईडी हो गया, मतलब पीआईडी हम्म। पी, मतलब पुराने कंट्रोलर्स की यूज से। और हाँ, सेकंड पीआईडी सर, कंट्रोलर्स। हाँ और सेकंड सर ये है ग्रास होपर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, वो यूज कर रहे हैं। कंपैरिजन दिखा रहे हैं ओके। दोनों में, बेसिकली कि कौन से मतलब ज्यादा मेरा वो होगा, मतलब बेनिफिशियल होगा मेरे लिए अगर मैं यूज करता हूँ, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ये चीज ठीक है। है। और तो जी सर। किसी कंट्रोलर्स, प्रीवियस कंट्रोलर से आप कंपेयर भी तो करोगे अपने, तो एक वही तो तो वही तो पीआईडी मैं कंट्रोलर आप यूज करो तो। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, पीआईडी कंट्रोलर विद ग्रास होपर ऑप्टिमाइजेशन, दोनों में से नहीं, कौन सा, या अच्छा अच्छा। उन ओके। दोनों में से कौन सा बेटर होगा, मतलब उसके लिए मेरे वर्क के लिए, तो वो चीज़ है। थोड़ा सर मुझे भी पूरा चीज़ें क्लियर नहीं है, बट सर ने बोला था कि वो डेवलप, सर ने बना के दिया था पूरा मॉडल, ओके, तो नो इश्यूज। डेवलप कर रहे हैं सर किसी लीनियर मॉडल, लीनियर कंट्रोलर वगैरह से कंपेयर भी कर रहे होंगे एफिशिएंसी आपकी सर। ज्यादा दिखाने के लिए। हो सकता है सर। अब सर क्या है कि सर मुझे एक तरीके से समझाएंगे तो ज़्यादा मुझे क्लियर हो पाएंगी चीज़ें, क्या है क्या हाँ नहीं। ठीक है, कोई इश्यूज नहीं। चलिए, मैं हम्म अपना स्क्रीन में थिंक आपको दिखने लगी होगी। yes, सर। तो जब आप आपका पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, तो आप फर्स्ट स्क्रीन जब खोलोगे, तो आपको ये कुछ स्क्रीन, इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। ठीक है। इस स्क्रीन को हम बेसिकली कहते हैं कमांड विंडो। सर सेटअप इसमें शो कर रहा है, सेटअप वो सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। तो यहाँ पे जी नीचे जो सर्च ऑप्शन है, उसमें जाके आइडियली लिखिए, IDLE। एक मिनट, सर्च ऑप्शन, सर्च कहाँ, सर्च ऑप्शन सर? अच्छा, सर्च ऑप्शन होगा ना आपके मैं लेफ्ट समझ कॉर्नर में, पाइथन आई डी, उसका। हाँ, आईडी, IDLE। हाँ मिल गया देखूँ, आगे। अब देखिए। हाँ, यस सर, ओपन ओपन कर लीजिए। यस सर। यस सर। ओपन कर लिया। यस सर। अब जब आपने ओपन किया होगा, तो आपको सबसे पहले एक विंडो दिख रही होगी। इस विंडो को हम बेसिकली बोलते हैं कमांड विंडो। बस स्क्रीन शेयर कर दूं क्या आपके सामने, अगर आप कहें तो? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आपको दिख रही होगी आई थिंक। नहीं नहीं, मैं अपनी, अच्छा सर देखिए, आप, आपका आपका ठीक है मैं समझ हाँ, गया, मेरी आपका देख लीजिए, देखिए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर अभी आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप अपनी शेयर कर लेना। जी सर ठीक है। ओके। तो ये कमांड विंडो जो बेसिकली है, ये आपकी फर्स्ट विंडो होती है, जिसके हम्म, अंदर आप अपना कोई भी कमांड ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। ओके। ठीक है। मगर इस कमांड विंडो का अगर आप यूज करके देखोगे, जैसे कमांड विंडो मैं अपनी खोल के दिखाता हूँ। देखिए, ये कमांड विंडो आपको खुली हुई दिख रही है। ये मेरे पास ठीक है। भी आ रही है। अब मेरे पास, मैं आपको कोई भी अपना कैलकुलेशन या कोई भी मैं अपना प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे नॉर्मल मैं 2+2 ही लिखता हूँ। तो मुझे देखिए हम्म, एक सिंगल लाइन के बाद मुझे आउटपुट मिल रहा है। हाँ
ठीक है, 2 into 5 लिख दिया तो मुझे आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, मैं मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड इसमें नहीं लिख सकता हूँ। ओके, सिंगल लाइन कोड लिख सकता हूँ। हाँ, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड आप लिख सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना है तो आपको यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको न्यू फाइल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, न्यू फाइल पे आपको क्लिक करोगे तो आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। हम्म, ठीक है, ये नया विंडो ओपन करते ही देखिए इसमें आपको, इसको और प्रीवियस विंडो में आपको डिफरेंस दिखेगा कि इसमें वो प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, प्रॉम्प्ट्स क्या है बेसिकली, प्रॉम्प्ट्स ये 3 एरोस को हम बोलते हैं। कैसे प्रॉम्प्ट्स? हाँ, PROMPTS, अच्छा, प्रॉम्प्ट्स प्रॉम्प्ट्स। PROMPTS प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, ओके, ये प्रॉम्प्ट्स आपको इस विंडो में, सेकंड विंडो में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सेकंड विंडो जो होती है बेसिकली एडिटर विंडो होती है आपकी, क्या होती है सर? एडिटर विंडो। ओके ओके। ओके, ये एडिटर विंडो के अंदर आप मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हो। ओके। ओके, आप इस एडिटर विंडो के अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो। ठीक है, बट जैसे ही आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड अपने एडिटर विंडो के अंदर लिखोगे तो आपको एडिटर विंडो के अंदर भी एक ड्रॉबैक मिलेगा। ठीक है, तो कोड लिख के देखते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 2 + 2 लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे मान लीजिए प्रिंट। ठीक है, प्रिंट लिख दिया मैंने हेलो। ओके, अब मैं अपने इस कोड को रन करने की कोशिश करता हूँ। तो कोड को रन करने के लिए मैं रन बटन यहाँ पे को दिख रहा है ऊपर, इस पे क्लिक यस करूंगा। सर, यस यस सर। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे दिख रहा है कि रन मॉड्यूल F5 शॉर्टकट है। ठीक है, रन करने से पहले मुझे इसको सेव करना जरूरी है। मतलब अगर मैं अपने कोड में जरा सा भी कोई चेंज करता हूँ, कोई सिंगल कॉमा या डॉट भी चेंज करता हूँ, तो मुझे अपने कोड को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार मुझे अपने कोड को सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद मान लीजिए कि आप किसी भी नाम से सेव कर देते हो, मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ वन नाम से। ठीक है, वन नाम से मैंने सेव कर दिया। ओके, पाइथन फाइल आपको दिख रहा है डाउन में, सेव एज टाइप पाइथन फाइल। हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब देखिए सेव करने के बाद जो इसका आउटपुट था, ठीक है, ये आउटपुट मुझे सेम एडिटर विंडो पे ना दिख के मुझे आउटपुट पे मुझे वापस कमांड विंडो पे आना पड़ा। ठीक है सर। ठीक है, और ये यस। 2 + 2 जो लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा था मैंने, मुझे इसका आउटपुट नहीं दिखा। मुझे अगर आउटपुट इसका भी देखना है तो मुझे भी इसको भी प्रिंट के अंदर पास करना पड़ेगा। ओके। अनलेस अंटिल मैं इसको प्रिंट करने पास करता हूँ मुझे आउटपुट नहीं दिखेगा। ठीक है सर। ओके, तो कमांड विंडो और एडिटर विंडो दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, आपको ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा। यस यस सर। ठीक है, कमांड विंडो आप मल्टीपल ऑफ कोड्स नहीं लिख सकते। ठीक है, एडिटर विंडो एडिटर में आप में लिख। मल्टीपल ऑफ कोड लिख सकते हो, मगर उसको आपको बार बार सेव करना होगा और उसका आउटपुट जो आपको हमेशा वो कमांड विंडो में ही दिखेगा। सर एक चीज़ और भी है ना कि जैसे जो लास्ट वाला जो कमांड है, इन दी हाँ। एडिटर विंडो, वो तो हमको हम्म, दिख रहा है। लेकिन हाँ उसके ऊपर वाला जो है, अगर उसको मुझे सारी लाइन, मतलब अगर मुझे इसके ऊपर ही मान लीजिए 10 लाइन और कोड और होते, तो हाँ, उनको भी लिखने के दिखाने के लिए मुझे प्रिंट एफ लिखना पड़ता ना। आप प्रिंट करना पड़ता, प्रिंट एफ नहीं सिर्फ प्रिंट है यहाँ पे। प्रिंट, अच्छा प्रिंट ऑप्शन, सॉरी सॉरी, प्रिंट एफ में सी से कंफ्यूजन आ गया। ठीक सी है का। सर। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस नहीं है। ठीक है, हम्म, ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस नहीं है, इसीलिए हम इसको, इन सॉफ्टवेयर को यूज ना करके हम एडिशनल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपने पूछा जाएगा कि आपने किस सॉफ्टवेयर में वर्क किया है। तो कुछ कंपनीज पूछती है कि आपने ऑफिशियल सॉफ्टवेयर जो कि आइडियली उस पर वर्क क्यों नहीं किया। ठीक ओके है, सर। तो उस वक्त ये रीजंस काम आते हैं आपके कि हाँ मैंने ऑफिशियल सॉफ्टवेयर पे वर्क किया है, बट इसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे ड्रॉबैक्स थे, इस वजह से मैंने अपना ज्यादातर वर्क एडिशनल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे यूज किया, जिसपे भी आपने वर्क किया। जैसे जुपिटर, इनकेस हम वर्क कर रहे हैं तो जुपिटर पे हमने वर्क किया है। ओके। सर ओके। एक चीज़ बताइए मुझे, एक चीज़ बताइए सर मुझे, ये सर जो है, ये आइडियली जो है उसी का ही मतलब पाइथन के अंदर का सॉफ्टवेयर है ना, पाइथन का हाँ, जो पाइथन का होता है। ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसमें हम सर कोई भी कमांड चला सकते हैं ना, इसमें कोई भी कमांड हो अपना, इस पे हाँ, इसी कोई भी एडिटर कमांड विंडो चल। पे। हाँ, तो सर इसका तो फिर अगर इस तरीके का है तो फिर तो ड्रॉबैक ही हुआ, फिर तो जनरली इसमें प्रॉब्लम आती होगी।
इसको? इसीलिए जनरली थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑफिशियल सॉफ्टवेयर यूज नहीं होते हैं। ओके। इसीलिए आपने पाइचाम सॉफ्टवेयर से, जुपिटर सॉफ्टवेयर से, इसीलिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लोग परचेज करते हैं, क्योंकि इस ऑफिशियल सॉफ्टवेयर में ये ड्रॉबैक्स अवेलेबल है। ओके ओके। ठीक है। अगर आपने मैटलैब नाम का एक सॉफ्टवेयर वो यूज किया होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, मतलब तो आपको देखा होगा अभी कुछ मैटलैब जैसा आपको आउटपुट मिल रहा है, इसमें स्क्रीन दिख बिल्कुल रही सर, है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, कमांड और विंडो एडिटर विंडो आपको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो रन वाला ऑप्शन वो सब जो है ना, डीबग रन ऑप्शन वो सब हाँ, सेम उसी टाइप का है। सब आपको सेम मिलेगा और मैटलैब सर जैसा। इसमें भी सर, जैसे कोई फाइल रन करें तो पहले सेव करना पड़ेगा, फिर आपको फाइल फाइल आपकी रन करती है, जैसे हाँ, उसमें भी सेम ऐसे होता सेम है। मैटलैब में ओके। भी यही सीन है, आपको यहाँ पे भी आपको वही सीन मिलेगा। ठीक है। जी। और मैटलैब से अभी सिमिलरिटीज और भी मिलेंगी, जैसे आपने मैटलैब में विजुअलाइजेशन के लिए प्लॉटिंग यूज की होगी, प्लॉट सब प्लॉट यूज किया होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो तो लॉट वही यूज सेम करते सिंटैक्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। एक्चुअली मैटलैब नहीं, पाइथन की एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, वो डेवलप की है। हैं। ओके 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 ठीक? तो मैटप्लॉटलिब पाइथन लाइब्रेरी है, वो मैटलैब ने ही डेवलप की है। तो इसलिए मैटलैब जैसा ही सिमिलर कोडिंग हम यहाँ पे भी करते हैं। ओके। सर ठीक है। ये पाइथन का सर जो डेवलपमेंट था, उसके बारे में आपने हाँ, मुझे बताया तो था, बट थोड़ा सा उसके बारे में बैकग्राउंड स्टोरी से बता दीजिए पहला। पाइथन के ताकि डेवलपर सिंगल पर्सन है, कोई टीम नहीं, जैसे कि बाकी सी सी प्लस या जावा में पूरी पूरी हम्म, टीम थी। पाइथन का एक सिंगल पर्सन है, गाइडो वैन रोसेम नाम है उनका। हम्म, अच्छा। ओके। गाइडो वैन रोसेम नाम है, और वो करंटली भी ऐसा नहीं कि रिटायर्ड है, करंटली भी वर्किंग है। माइक्रोसॉफ्ट का गेमिंग डिवीजन हेड करते हैं वो। ओके। ओके। माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग डिवीजन सबको समझ में आ रहा होगा, जैसे प्ले स्टेशन 3 है, PS4 PS5 प्ले स्टेशन जो आप यूज करते हो या गेम जो उसमें यूज कर रहे होते हो, हाँ हाँ। उस डिवीजन के वो हेड है। तो प्ले स्टेशन को कैसे और इम्प्रूव किया जाए या पाइथन के हेल्प से और कैसे गेम डेवलप किया जाए, उस डिवीजन को वो हेड कर रहे होते हैं। ठीक है। उन्होंने ओके। माइक्रोसॉफ्ट ईयर 2020 में ही ज्वाइन किया है। अच्छा सर, एज काफ़ी है क्या उनकी? अराउंड 57 है। और सर आपने बताया था ना कि पहले ये पाइथन बहुत पहले डेवलप हुआ था। हाँ, पाइथन अराउंड ईयर 1990s में, मतलब कि सीख डेवलप होने के 10 साल बाद डेवलप हो गया था। अच्छा, सी डेवलप होने के 10 साल बाद। हाँ, ओके। मगर ये फेमस बहुत लेट हुआ। अब पाइथन के बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा डेवलप हुई, हाँ रूबी हाँ। है, सी शार्प है, ये सब पाइथन डेवलप होने के बाद डेवलप हुई, मगर आप इन सबको पहले से जानते हो। यस सर। यस बट सर। पाइथन का नाम आपने नहीं सुना था, नहीं सर, नहीं। क्योंकि पाइथन बहुत लेट में फेमस हुई और ये सब लैंग्वेज बहुत पहले फेमस हो गई थी। पाइथन एक्चुअली में फेमस स्टार्ट होना स्टार्ट हुई 2015 के बाद से, जब इस पे डीप लर्निंग या फिर कह लीजिए कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसे टॉपिक्स वर्क होना स्टार्ट हो गए। ओके ओके। ओके। तो 2015 के बाद से पाइथन फेमस ज्यादा हुई है, उसके पहले पाइथन बहुत कम फेमस थी। अच्छा। ओके ओके। सर एक चीज़ और ओके। बता दीजिए हाँ। जैसे इसके अंदर, जैसे अभी आपने बताया कि जो ये सॉफ्टवेयर आईडी। हम्म, बोलिए, बताइए, हेलो। हेलो।
हेलो। हेलो। यस सर, यस सर। सर एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम आ गई थी मेरे नो इशू। वाईफाई में। तो अभी सर हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया मैंने, इसीलिए सर। सॉरी सॉरी सर। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, विजिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए। सर जैसे मतलब जो आपने बताया था सर कि मैटलैब को जो डेवलप किया था, हम्म। सॉरी इसको आइडियल सॉफ्टवेयर पाइथन। डेवलप मैटलैब मैटलैब डेवलप किया था ना, आपने बता रहा था। नहीं नहीं, पाइथन के अंदर ना बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। ओके। ठीक है, तो उनमें से एक लाइब्रेरी को मैटलैब ने भी डेवलप किया है। ओके, गॉट इट। ठीक। ठीक है सर, मैटलैब ठीक। कंपनी भी है और मैटलैब सॉफ्टवेयर भी है। हाँ नहीं, वो तो सब क्लियर है, उसके उसमें वहाँ कोई इशू नहीं है सर। मुझे पाइथन से कनेक्ट करना था कि पाइथन में वो कहाँ पे है, तो आपने बताया कि पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज जो है उन्होंने डेवलप की है मैटलैब ने हाँ, ना। मैटलैब ठीक है नाम की सर। लाइब्रेरी जो कि विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। जैसे आप मैटलैब में विजुअलाइज करते थे, हम्म। ठीक है, लाइन ग्राफ ये सब, तो उसी तरह के हम्म। विजुअलाइजेशन के लिए एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब नाम से। ओके सर, ठीक ओके, है। उस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को मैटलैब ने डेवलप कर रखा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। पाइथन के अंदर जितने भी हैं सब लाइब्रेरीज हैं, उनको बिग बिग टेक कंपनीज ने ही डेवलप किया है या फिर किसी ओपन सोर्स डेवलपर ने डेवलप किया है। जैसे कि ओके, गूगल द्वारा डेवलप लाइब्रेरी है टेंसरफ्लो, उसी तरह फेसबुक द्वारा डेवलप लाइब्रेरी है पाइटॉर्च। ठीक है ठीक। सर। इन दी पाइथन ना। हाँ, इन पाइथन सिर्फ। ओके सर, ठीक है सर। ओके, सर इसमें जो लाइब्रेरीज है वो दिख नहीं रही सर, लाइब्रेरीज कहाँ पे हैं सर जो आप नेट पे सर्च कर सकते हो सारी लाइब्रेरीज। नहीं नहीं सर, वो तो ठीक है। मैं वैसे तो ठीक है। जैसे सर इसके अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके उस पे शो नहीं करता है कि लाइब्रेरीज कहाँ पे हैं। इसमें नहीं कोई ऑप्शन आता है लाइब्रेरीज का। आपको सी ड्राइव में जहाँ पे आपका इंस्टॉल हुआ होगा पाइथन आइडियाली, वहाँ पे हम्म। कुछ बेसिक लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। बाकी आपको जब जुपिटर इंस्टॉल करोगे तो जुपिटर में आपको ज्यादा लाइब्रेरीज देखने को मिलेगी। जुपिटर सर, आप उसका लिंक भेज दोगे? मैंने आपको जुपिटर का लिंक भेज दिया, आपने डाउनलोड भी कर लिया है, आप उसको इंस्टॉल करवाना है बेसिकली मुझे। अच्छा अच्छा सर। ओके ओके, हाँ जुपिटर का शायद लॉस सॉल्व भी हो गया है। आई थिंक सो वो मैं, हाँ डाउनलोडिंग हो गया। आपने दो फाइल भेजी थी। यहाँ सर ये से आपने फाइल एनाकोंडा। डाउनलोड की थी। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, अब इसको एनाकोंडा। हाँ ओपन करके आप इंस्टॉल करना चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। सर हाँ सर, एग्जीक्यूशन वाला आ रहा है पार्ट, मैं कर दे रहा हूँ ओपन। ओपन कर दे रहा ठीक हूँ। है, कर लीजिए। सर मतलब इंस्टॉल होता है, आप पढ़ाते रहो सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस पाइथन आइडियली में अगर आप देखोगे तो इसमें आइडियली जो वर्ड है आपको वही मालूम होगा जैसे बाकी सॉफ्टवेयर में होता है, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, उसी के लिए एग्जीक्यूट करता है या उसी के लिए स्टैंड करता है। अब ये इंटरेक्टिव कैसे हुआ? तो बेसिकली ये कलर जो चेंज हो रहे हैं, जैसे प्रिंट में आपको कलर चेंज दिखा था, उसके अंदर जो आपने वर्ड लिखा था उसके अंदर जो कलर चेंज दिखा था, उस हिसाब से इंटरेक्टिव होते हैं। ठीक है, ओके। ये कलर चेंज करके बताते हैं कि अगर आपने सही लिखा होगा तो कलर चेंज हो रहा होगा, अगर आपने कुछ गलत लिख दिया होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। ओके, ओके। गॉट इट। ठीक है सर। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सर हाँ, बोलिए। सर नेक्स्ट, सर इसमें एनाकोंडा का सेटअप हो गया। अब हम्म, सर इसमें इंस्टॉल फॉर जस्ट मी और ऑल यूजर्स ऑल यूजर्स कर लीजिए। रिक्वायर्स एडमिन सर्विसेज। हम्म, यस कर लीजिए। कोई दिक्कत आई तो अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अलाउ कर दिया। हम्म, ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गया। सर इसके लिए जैसे जैसे आप एज अ पाइथन एज अ सब्जेक्ट है हमारा, उसको मानते हम्म, हैं। और पाइथन के अंदर से हमारा पाइथन से ही आपका एमएल और डेटा साइंस होता है ना, आगे हम्म, आगे आगे। तो सर इसके लिए कोई बुक स्पेशल होती है कि जो आप रिकमेंड करते हो कि काफ़ी अच्छी बुक हो जिससे आपको मतलब इंटरव्यू पर्पज से भी और भी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल हो। एक फोन आता है, ऑथर की बुक तो है बट वो एमएल पे फोकस ज्यादा करती है।
बेसिक पाइथन वर्क नहीं फोकस नहीं करती है। ओके। तो अगर आपको बेसिक पाइथन जैसे समझ आता है तो उसके बाद अगर आपको एमएल और डीएल के लिए बुक चाहिए होगी तो मैं वो बुक सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है बेसिक सर। पाइथन के लिए एक दो अब बुक्स दे सकता हूँ बट वो बहुत अच्छी नहीं है। हाँ मैं समझ, उससे उससे बढ़िया कंटेंट तो आप मुझे दोगे ना। हाँ, उससे बढ़िया होगा आपकी, आप नेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हो। नहीं नहीं, वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं। सर एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है सर, देखिए क्या होता है, जैसे आप अगर एज अ स्टूडेंट, अगर मतलब हम लोग इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करते हैं कोई भी, हम्म। कि हमारा फोकस क्लियर है, इन द सेंस कि जैसे अगर मैं 10 जगह जाऊँगा सर करने के लिए, तो हम्म। हर जगह मेरा फोकस बढ़ जाएगा। हम्म। अगर मैं आपके, और फिर मैं आपके, आप जो कंटेंट दे रहे हैं मैं उसको भी फिर करूँ, कोई जरूरत नहीं है बुक पढ़ने की, या तो ऐसा करा जाए। हम्म। मैं तो अगर मैं इस पे हाँ मैं इस फो, जी सर। वैसा फोकस की प्रॉब्लम है या टाइम वैसे प्रॉब्लम, तो आप जितना कंटेंट हम दे रहे हैं उतना आप पढ़िए, उतना सफिशियंट है आपके लिए। बस खत्म सर, ठीक है ना, क्लियर। बस वही 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 जाना चाहता हूँ, बस इतनी बात। ठीक है सर, हो गया सर इसका आंसर। ओके, चलो। चलिए मैं आगे बताऊं फिर। यस सर। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन दिख रही होगी बताइएगा। दिख रही है स्क्रीन? हेलो? हेलो? यस सर, यस सर, हेलो, यस सर। हाँ, हेलो। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, यस, वेरिएबल्स। हाँ ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया? सर जो मतलब वेरिएबल्स नॉर्मल में वही, वेरिएबल्स मतलब वेरी करते हैं और क्या, एक एक वैल्यू जो जो कांस्टेंट नहीं वैरी रहती। करते हैं, ओके। सी में आपने सी पढ़ा है ना शायद? हाँ हाँ हाँ। तो सी में आपके लिए वेरिएबल्स क्या थे? सो वेरिएबल्स मेरे एक्स वाई जेड, आप सी में कोई भी स्ट्रिंग। वेरिएबल बनाते होगे तो ऐसा कुछ लिखते होगे, पहले लिखते होगे इंट। हाँ सर अभी समझ, हाँ हाँ, मतलब इस तरीके इंट से लॉन्ग। या फिर कैर, हाँ हाँ, कैर याद आ लिखते गया होगे, सही, और याद आ गया, उसके याद आ बाद गया। उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते होगे। यस सर, yes, ठीक है। तो वेरिएबल्स बेसिकली एक तरीके कंटेनर्स होते हैं। ठीक है। yes। स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं बेसिकली एक तरीके के। ठीक है। हाँ कंटेनर्स स्टोरेज डिवाइसेस जिनको आप कह सकते हो, जो आपके लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक ठीक है है। सर। वेरिएबल वो चीज नहीं होती जो वेरी करती है, वेरिएबल बेसिकली एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है। अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन के वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? ओके। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने बिग बाजार गए हो, यस सर, बिग बाजार गए हो आप, यस सर, यस सर। तो बिग बाजार में अगर आप ट्रॉली कार्ट लेते होगे तो उस ट्रॉली कार्ट में आप कपड़े भी रखते होगे, कोई यस सर, ग्रोसरीज खरीदे तो वो भी रखते होगे, कोई यस सर, खाने पीने का सामान खरीदा तो वो भी रखते होगे, कोई गेम खेला तो वो भी रखते होगे। यस सर। ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई बिग बाजार का एम्प्लॉय आपको बोलता है कि नहीं सर, ये कार्ड जो आपने लिया वो सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की, आप सिर्फ कपड़े रख सकते हो, बाकी कुछ नहीं रख सकते। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। तो नहीं सर। पाइथन के अंदर भी जब भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, ठीक है, तो पाइथन के अंदर भी वेरिएबल्स के अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कि हम उनके अंदर इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, और कोई वर्ड भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है सर, पाइथन के ठीक अंदर आपको टाइप कास्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। है। ओके सर, ठीक है सर। जैसे कि आपको सी में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंटीजर वेरिएबल बनाना तो आपको इंटीजर टाइप कास्ट करना पड़ेगा, कैरेक्टर वेरिएबल हम्म बनाना तो आपको कैरेक्टर टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अगर आप टाइप हम्म। कास्ट किए बिना वेरिएबल बनाते हो तो वहां पे आपको एरर शो कर देता है, या फिर अगर आप रॉन्ग टाइप कास्ट करते हो तो भी आपको एरर शो करता है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सर जावा में तो यही होती है प्रॉब्लम। हाँ, जावा में भी यही होती है, आपका सी शार्प में भी यही होती है। ठीक है। कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप वर्क कर लीजिए, हडूप वगैरह, तो उसमें भी आपको यही मिलेगा। तो पाइथन में मतलब ये चीज नहीं है। ये सबसे ज्यादा मॉडिफाइड लैंग्वेज कह सकते हैं इसको बाकियों से कंपैरिजन में। हाँ कह सकते हो, बट इसमें भी डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि सी और जावा से कमजोर है, या जी सी जावा से स्लो है। ओके, क्या है सर वो चीज़ें? इसकी जैसे प्रोसेसिंग स्पीड है इसकी, ये सी से कम है, क्योंकि ये ओके। एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है। क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कोड प्रोसेस करती है। ठीक है। तो हम्म इस वजह से ये थोड़ा इसका आउटपुट स्लो आता है। सी क्योंकि कंपाइलर है,
पूरा कोड को एक साथ प्रोसेस करती है और आपको आउटपुट दिखाती है। तो इस वजह ओके, से सी जरा फास्ट वर्क कर रही होती है। प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। हाँ ओके सर, ठीक है सर, आप पढ़ाएं सर, मैं इसको ठीक है बोलूंगा नहीं क्योंकि आपको कंटेंट क्लियर अपना कर देना complete। ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया, तो उसके अंदर मैंने नंबर 20 स्टोर कर रखा है। हम्म, ठीक है। मैंने कोई भी टाइप कास्टिंग नहीं कर रखी है यहाँ पे, हम्म, मतलब कोई भी मैंने टाइप नहीं डिफाइन कर रखा कि एक्स के अंदर मैंने नंबर स्टोर करना है। ठीक है। इसी तरह वाई बनाया है, वाई के अंदर आई में वेरिएबल स्टोर कर रखा है। ठीक है। जेड के अंदर आई एम ऑल्सो वेरिएबल स्टोर कर रखा है और तीनों को प्रिंट करवा रखा है। जब ये कोड आप लिख के देखोगे अपने कोड में, तो ये इजिली हम्म, एज इट इज रन कर जाएगा। ठीक है। ठीक है आपको कोई भी एरर नहीं देगा ये कोड। सर। ये डबल इन्वर्टर और सिंगल इन्वर्टर की प्रॉब्लम है क्या कोई? हाँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये जनरली आपने बाकी जब कोडिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो इनका अलग अलग मतलब होता है। यस सर, वही तो पूछ ठीक रहा है। था अभी। मगर पाइथन के अंदर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, तीनों का कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों का सेम मतलब है। ठीक है सर। ओके। ठीक है। पाइथन के अंदर आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हम बेसिकली बना रहे हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल्स आप कैसे बना सकते हो या किस नाम को आप वेरिएबल कह सकते हो या किसको नहीं कह सकते हैं। ओके सर। ठीक है। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के, इसमें भी कुछ रूल्स है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला रूल जो है, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अ अंडरस्कोर। ओके। मतलब वेरिएबल्स को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, या तो वो लेटर स्टार्ट होना चाहिए या तो वो अंडरस्कोर स्टार्ट होना चाहिए। मतलब आप उसके अंदर कैपिटल ए टू कैपिटल जेड रख सकते हो। ठीक है। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड रख सकते हो, या फिर आप एक अंडरस्कोर रख सकते हो। सर अंडरस्कोर थोड़ा सा सर पढ़ाया बट ध्यान नहीं आ रहा, अंडरस्कोर क्या था सर? अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे कि आपका एट द रेट सिंबल है। अच्छा, वो हैश एट द रेट हाँ, तो स्लैश। हैश नॉर्मल सिंबल होता है, और वही जब उसको आप डाउनवर्ड्स देखते हो तो वो अंडरस्कोर कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिखा होगा अंडरस्कोर 9 लिखा हुआ है। यहाँ सर देखिए यस। अंडरस्कोर एन लिखा हुआ है, अंडर एन हम्म, अंडरस्कोर 9 लिखा हुआ है। हम्म, ठीक है। तो इस सिंबल को बेसिकली हम अंडरस्कोर बोलते हैं। अच्छा सर, एन तो एन जो है ये मेरा वेरिएबल है। हाँ, एन भी एक वेरिएबल हो सकता है। आप एन से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप अंडरस्कोर एन हाँ, से कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। ओके, लेटर से भी और अंडरस्कोर से भी है ना? और लेटर से भी वेरिएबल का अंडरस्कोर स्टार्ट। से कर सकते हो। मतलब ठीक आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ नंबर। ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल आपने दे रखा सर, वैलिड और इनवैलिड समझ में आ गया सर। वन ए हाँ, इनवैलिड है सर, वन ये इनवैलिड एन क्योंकि यहाँ पे नंबर से स्टार्ट हो रखा है। और ये एन परसेंटेज फोर क्यों? ये एन एन परसेंटेज क्योंकि यहाँ पे फोर। आपको देखिए थर्ड रूल देखिए, a variable name can only contain alphanumeric characters and underscore। मतलब कि वो या तो कैपिटल ए कैपिटल जेड, स्मॉल टू स्मॉल जेड, या फिर नंबर स्टोर करेंगे 0 to 9, और उसके अलावा स्पेशल सिंबल्स में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज करेगा। उसको छोड़ के कोई भी आप स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते हो, जैसे कि एट द रेट है, परसेंटेज साइन है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये परसेंटेज साइन एक स्पेशल सिंबल दिख रहा है। तो बाद में है ना सर, मतलब ये सेकंड है ना? हाँ, सेकंड कोई भी कहीं पे भी हो, सिर्फ स्टार्टिंग ही नहीं, कहीं भी पूरे वेरिएबल के नाम में आप कहीं भी कोई भी स्पेशल ओके, सिंबल यूज नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर। ओके सर। अंडरस्कोर का सर क्या था, आपने बताया था ना? एट द रेट है, और क्या क्या है सर अंडरस्कोर में? अंडर थोड़ा एट द बता रेट दीजिए सर। अंडरस्कोर नहीं है, अंडरस्कोर भी एक सिंबल है, जैसे कि आपका एट द रेट सिंबल है। ठीक है। इसी तरह आपके पास एक परसेंटेज सिंबल है, इसी तरह आपके पास एक और सिंबल है। ये सब स्पेशल सिंबल्स कहलाते हैं जो आपके कीबोर्ड में आपको दिखते हैं। बट आउट ऑफ दिस फर्स्ट वन इज वैलिड ओनली। हाँ, तो आउट ऑफ these many symbols we can only use this particular symbol, nothing else। Okay, only this symbol is valid, apart from this all the other symbols are invalid। ओके सर, क्लियर। okay यस सर। okay जो आपका डैश होता है, जो स्पेस आप जिसको बोलते हो, यस सर। ठीक है, तो स्पेस भी आपका एक स्पेशल सिंबल होता है, इसीलिए आपका स्पेस भी वैलिड कैरेक्टर नहीं है जब आप कोई वेरिएबल का नाम लिख रहे होगे तो।
ओके ओके। इसीलिए आपने कोई प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि स्पेस यूज नहीं कर रहे होते, हमेशा हम वेरिएबल्स के बीच में अंडरस्कोर यूज कर रहे होते हैं। यस सर ठीक ओके। है सर क्लियर है प्लस लास्ट रूल ये है कि इसके वेरिएबल जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब कि स्मॉल एज का मतलब दूसरा होगा, जिसमें कैपिटल ए कर दिया तो इसका मतलब दूसरा होगा, और इसमें सब कुछ कैपिटल्स में लिखा तो इसका मतलब कुछ अलग होगा। ठीक है, ओके ये सब केस सेंसिटिव है। ठीक है सर ठीक है, इन ठीक रूल्स में कोई दिक्कत? नो सर कैसे एग्जांपल इसे दीजिए किस केस सेंसिटिव एग्जांपल एग्जाम्पल देख लीजिए। अब एग्जाम्पल से बताइए, किसी भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको। नहीं, नहीं सर मुझे लास्ट वाला जो आपने बताया वो क्लियर नहीं हो रहा इसका कोई एग्जांपल दे दीजिए सर क्लियर हो गया नहीं अच्छा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ, कोड करके दिखाते हैं सीधे। आइडियली ओपन कर लेते हैं अपनी। ठीक है? इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने x लिखा, x इक्वल टू 10 लिख दिया। ठीक है, x की वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ, स्मॉल x की वैल्यू तो मेरे पास अभी भी 10 आ रही है। ठीक है, इसी तरह कैपिटल x ले लिया। अब कैपिटल x के अंदर मैंने स्टोर कर दिया हेलो। ठीक है, अब मैं कैपिटल x प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे कैपिटल x की वैल्यू हेलो मिल रही है, और स्मॉल x की वैल्यू 10 मिल रही है। मतलब कैपिटल x का डिफरेंट मीनिंग है, स्मॉल x का डिफरेंट मीनिंग है। व्हाट इज क्लियर 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 ठीक है, क्लियर इसे हम कह रहे हैं क्लियर केस सेंसिटिव होना। and if you write small x and double x is equal to 10 is equal to 11 then that will have different value है ना हाँ, यहाँ पे अगर वो मैं डबल एक्स लिख देता हूँ तो इसका कुछ उसका और वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूँ। व्हाट इज ठीक क्लियर है, क्लियर डबल एक्स का मीनिंग 20 हो गया। क्लियर ओके, यस अभी तक कोई आपको दिक्कत वेरिएबल्स में? नहीं सर क्लियर ठीक है, सारा क्लियर एक बार जुपिटर देख लीजिए आपका इंस्टॉल हो गया कि नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बताइए, सॉल्व कर दें। can I share the screen हाँ, यू कैन अलाउड। so I think it is taking time ओके, इट विल टेक 2 3 मिनट्स। ओके, चलिए मैं sir अपनी you स्क्रीन पे teach आपको yes sir you teach मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, एनाकोंडा लिखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनाकोंडा नेविगेटर। okay ओके, जैसे ही आप इसको क्लिक करके ओपन करोगे so where तो I कुछ am not आपके able to ये, see हाँ I'm not able हाँ, to see you sir ओके, जस्ट अ I सेकंड। so actually I have not I think मैंने हटा नहीं कैन यू सी नाउ? yes sir yes sir नहीं sir I'm not able to see कैन यू सी माय स्क्रीन और नॉट? yes sir no, sir not able to sir screen नहीं शो कर रहा है कुछ और शो कर रहा है yes sir no not is आई थिंक यू कैन सी इट नाउ। yeah it is Okay, visible now so when you are going to search for anaconda navigator, you just search for anaconda. Okay, you are going to see an option known as anaconda navigator. okay Okay, and when you are going to click on that anaconda navigator, this type of command page will open. okay Okay. Yeah, this type of command page will open. Okay,
Here you will see a lot of softwares. Can you see the screen? Yes, sir. Available. Okay. So देखिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा जुपिटर नोटबुक, ठीक है, Yes, sir. और सॉफ्टवेयर है पाइचाम। अगर आर पे वर्क करो तो आर स्टूडियो, स्पाइडर। Sir, you told me about this, na? These softwares. You, नो आई डोंट uh, थिंक सो। I earlier, sir, in the last class. I think in Uh, the demo I must have shown you yes, sir. this. Yes, sir. Yes, sir. That one. Yes, sir. Proceed, sir. Okay. So if you are working on R programming language, then you can use this R software. And most of the companies, like if you have heard of companies like Panasonic, Wipro, okay. So these Yes, companies sir. basically work on R Spider software. Okay. 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 Then we have Jupyter also. Okay. So all these softwares use the same code line and the same command line. Okay. Nothing is different. You can use the same code in Ideally also. You can use the same code in Spider also. You can use the same code in PyCharm also, and you can use the same code in Jupyter Notebook also. Okay. Okay. So Sir, whatever software you want to use, you can use it. Okay. From coding perspective, there is no difference even of a single dot. Okay. 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 If you want, just you can just launch the software. Okay. When you are going to launch the software, this Jupyter Notebook is a web-based software. Okay. Okay. So it's going to open inside your web browser, whatever the web browser you are going to use, you are having in your system, like Google Chrome or Firefox or anything like that. So it is going to open in that particular software. Okay. And in that particular software, you can create a folder of your own, Okay. or you can create a notebook of your own. Like here from you, from the right top corner, you can see Python 3 option. When you're going to click on new, Python. Python 3 option. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Can you see this? Yes, sir. Able to see. Python 3 option. Yes, sir. Yes, sir. Able to see. So when you're going to click on Python 3, it's going to open inside a new tab. And inside this new tab, you can write whatever code you want to write. Okay. You can write any code, whatever you want to write. Like in previously, in Ideally, we have written code like this. Okay. In Ideally, we have written code like this also. Yes, sir. Okay. So you can write anything, whatever you want. Sir, one thing, sir. This is Hassan. Sir, Yeah. could you send, could you send me after the class? Could you please send me, sir, all the today's class today's class screenshots? No, I won't be sending you a screenshot. I will be sending you the class recording and PPTs, whatever I have Okay. opened Okay, these sir. PPTs. Not a Okay. problem. I'll be sending Simple. you class recording and PPTs. Yes, yes. That is enough. Okay. So here you can see that small x is giving me value of 10. So If what I'm is out using three? What is out what? three? Out three is what is it? Out 3 is basically giving me the Okay. output of this line number 3. Okay. 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 And that output Because is I'm not using the print command here. Without using the print command, I'm also able to see the output. okay. Okay. I And also here, so here we yeah, don't need to put semicolon also, no? We semicolon don't. is used in C only. There is no use of semicolon inside Python. Hmm. Okay. Python is the only programming language I have learned till now which does not use any type of semicolon. Okay, sir. Okay. If you want to save your file, you can just click on this untitled and you can save the file whatever the name you want. Okay, sir. Okay. You can give it any name. Yeah. Okay. If you want, you can see here you have multiple different options also. So if you want to download this file as PDF, you can do that. If you download this file as an HTML file, you can do that. If you want to download this file as a Python file, you can do that also. Okay. So what is PDF to LaTeX? PDF LaTeX is a software which helps us to download this complete Jupyter notebook as a form of a PDF. Okay. 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 So
The by default extension of Python is .py. Okay. Okay, this is the by default extension of Python. But if we Okay. talk about this Jupyter notebook, so the by default extension of this Jupyter notebook is dot. Let me use the different color. Dot I P Y N B. Okay, so this is the Okay. official extension of this Jupyter notebook. Okay, and why this Jupyter notebook is useful? Okay, this Jupyter From notebook is very much useful to you because it gives you the feeling of writing in a notebook as you have done in your school days or in your college days. As you write in your notebook, you can write in your Jupyter notebook also. Okay, so what is this IP? What is I there? Sir? IP. IP. IPYNB is the extension. No, sir. You told me that PY is for Python, NB is for PY, notebook, yeah, and what I is IPYNB is IPYNB stands for Anaconda Jupyter Notebook. okay. Okay, that's Good. an interactive Python notebook. Okay. Good. Because Anaconda Jupyter Notebook is also known as interactive Python notebook. That's Good. what is IPYNB stand for, interactive Good. Python notebook. Good. Okay, Yes. so here you can see that you have got certain types of line as you can see in your copies also. If you want to insert any particular line, you can also insert any line in between. Okay, if you want to write any type of heading, you can do that also. Here you can see there's an option of heading, and you can write here the heading like you do in your copy. Okay, sir. Okay, so you can see this first day is has come as a heading part. Okay, this is why we are using this Jupyter notebook. So it is simple. I think it is simple software. Yeah, it's very simple and easy to use as compared to your Python ideally. Yes, sir. Okay, any No, doubt? no, sir, no doubt. No doubt. Yeah, yes. Okay, so you have installed, I think, the Jupyter notebook. One second. Yes, sir. Installed there. It's installed. Try to open it once. If you have any problem, let me know. One minute, sir. It is installed. And from tomorrow onwards, Yes, we'll sir. try to move forward with its Python coding itself. Okay, sir. Not tomorrow, I think. You have only weekend class, not so in next Saturday Yes, we are going to have yes, classes. sir. Yes, yes, sir. सर yesterday's class can't मतलब कल की क्लास नहीं हो सकती सर क्या एक्सटेंड कल के लिए बस मंडे के लिए मैं सर से बात कर लेता हूँ एक बार हाँ, बात कर लीजिएगा। वैसे मंडे को मेरा शेड्यूलिंग खाली नहीं होता, तो आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं सर ठीक है फिर सैटरडे संडे करें बट ठीक है, सर यहाँ कुछ पे लिखिए, जुपिटर लिख के सर्च कर लीजिए, या एनाकोंडा लिख के सर्च कर लीजिए आप, एनाकोंडा। आ गया है हाँ, जुपिटर नोटबुक भी आ जाएगा और एनाकोंडा भी आ जाएगा। ओपन हाँ, ओपन कर लीजिए। एनाकोंडा भी लिख के सर्च कर लीजिए, एनाकोंडा भी ओपन कर लीजिए तो इजी रहेगा। आ गया ये तो आ गया बट हाँ, इसमें ये तो सर ये कमांड जुपिटर विंडो आ नोटबुक बेसिकली आपका कमांड फॉर्म में ओपन हुआ है, तो आप हाँ एनाकोंडा हाँ से वहां से लॉन्च करेंगे तो आपका वेब ब्राउजर में लॉन्च हो जाएगा। वन सेकंड तो फिर मैं इसको हटा के मैं इसको अकाउंट वैसे एनाकोंडा से आप करके देखिए। ओके, एनाकोंडा नेविगेटर ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा हो। फर्स्ट ऑप्शन हाँ, ओके इसको क्लिक कर लीजिए। अब इसको क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर में वो नेविगेटर ओपन हो जाएगा। वन इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ये सर ये फाइल जो है ये मतलब फाइल का साइज कितना है सर इसका 100 MB है सर इट इज शोइंग कमांड विंडो ओनली हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो Hello. Yes, sir. Yeah, can you hear me now? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Sorry for the disturbance. My Wi-Fi was shut off. Okay. सर कोई बात नहीं सर आपका सर इसमें अकाउंट सर पता नहीं सर इट इज नॉट ओपनिंग सर it's taking time. I think it's opening for the first time. That's why it's taking time. ओके It's because it's a heavy software. It will take some time for to. यस इट Okay. इज ओपन इट्स ओपन Yeah. यस Let's go on Jupyter Notebook and launch it. Go not that Jupyter Lab. Go down in the second line. You can see the first option. Yeah, Jupyter Notebook, and then click on launch. Okay, it will open inside your web browser. ओके Okay, so I think your web browser is Internet Explorer. It's open. So check on Internet Explorer or your Google Chrome. Whatever is सर your default web browser. it will not take automatically to that page or we have to open the browser It will be automatically open to that web browser if that web browser is closed. Okay, if that web browser is minimized, it will be minimized also. inside there now. One second. I think your Internet Explorer is also open. So just check on it once also. Okay. Yeah, close this. Close this Internet Explorer. No need. Okay. And just check your Chrome that whether this Jupyter Notebook has opened or not. Yeah, not it has not been opened yet. Okay, just launch it Yes. again. Yeah, it's launching notebook. Now it should automatically take you to the Sir, I think sir these all the softwares yeah, are developed by the Anaconda company only. yeah. These are all the products of Anaconda company itself. Okay. I think so. It is open. No, not open. It's launching, I think.
Sir, what would be class timing of Your class will be 5 to 6. Okay, so 1 hour, sir. So Wasim sir was saying that class would be around 2 hours. If I take on weekend, it would be around 2 hours. So when we'll be starting our projects, then hours will be 1.5 hours to 2 hours. Okay, okay. But Got basic theory will be of got it, sir. okay. Yes. 1 minute, sir. I'm saying not again. Not okay. Yeah. You are having, sir. What? Hello. You are having class after this, sir. Yeah. Hello. Okay. Hello? So I think it will take time. I think so. You Okay, try to launch it. If you have some issues, then let me know in the WhatsApp. Okay. no, sir. But not now, sir. It started. Now it Okay. started. Yes. Yeah, it's loading now. Here now. New. Yeah. So you just click on new and click on Python 3. Okay. Okay. Yes. So it is now opened inside a new tab Yeah. from where you can do the coding and you can save this also and can change this code also. So how will it go in the next? It is same block, na? Yeah, I to got different run lines. this code, run this block, click on run Okay. button. Yeah, click on Okay. this. Then It will automatically give you a new code, new block. If you want to add multiple blocks at one, you can also click on this plus symbol. So it will where? add multiple blocks for you. So where is the plus symbol? Plus symbol, the second Achha, option yeah. after. Okay. Okay. Got it. And how to remove that? Remove. You can just click on any of the block you want to move and just click cut it. Just click on the cut symbol. Beside this plus symbol, there's a cut option also. Yeah. The third option. The third option. Yeah. Okay. Take it. Okay. No, clear. Just click on save. Click on save button. So where is, This first save. button is the save button. First one. The first one. Yeah. This This is the save button. Okay. now It's it is saved. saved. Oh yeah. Yeah. It's saved. Now click on home page. Home page. Yeah. Home page. The first tab it was opened. Jupyter Notebook home page tab. Click on home page tab. Yeah. Yes, sir. Here you can see your untitled IPYNB file. Yes, sir. Okay. Okay. It is showing with the extension. Yeah. It's showing. It will always show you with the extension. Okay. When you click on it, it will show you the coding whatever you have done till now. So if I want to change the file name, how to change that? So Just here. click on untitled. Yeah, and you Yes. can change the file name here. Okay. After changing the file name, you can just click on save also again. Okay, got it. Okay. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Any Thank you, doubt? sir. No, sir, not. So please send me the recorded videos if possible. Yeah. I will send you the recording by evening. Thank you, sir. Thank you.